اختیارات نہیں تو گھر جاؤ، کیوں میئر بنے بیٹھے ہو، جان چھوڑو شہر کی۔ چیف جسٹس کا وسیم اختر پر اظہار برہمی۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے، کراچی سے ہر کوئی اپنے حصے کی بالٹی بھر کر چلا جاتا ہے، سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وزیر بڑی گاڑیوں میں مسکراتے ہوئے گھومتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیلی کاپٹر پر گھوم کر آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی میئر آ جائے ان وسائل اور اختیارات کے ساتھ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کی جو میری پٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اس کو ٹیک اپ کریں۔ اتھارٹی کو بہانہ بنا کے کراچی کا ستیہ ناش کر دیا ہے دونوں حکومتوں نے۔ چیف جسٹس کی ناراضی بجا ہے، کوئی محکمہ پرفارم نہیں کر رہا، سندھ حکومت کی کارکردگی صفر ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے تسلیم کیا شہر کی 70% زمین صوبے کے پاس نہیں، ان اختیارات کے ساتھ کوئی میئر کارکردگی نہیں دکھا سکتا۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 140A سے متعلق درخواست کی سماعت کرے۔ طلبہ اور اساتذہ تیار ہو جائیں، اگلے ماہ سے اسکول کھول دیے جائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کر دیا، ایسٹ لندن کے ایک اسکول کا دورہ، کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا، بچوں کے ساتھ نشانے بازی بھی کی۔ برطانیہ میں اگلے ماہ پھر لاک ڈاؤن نافذ ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کے سابق چیف سائنٹسٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، کہتے ہیں اس وقت اسکول کھولنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ آج برطانیہ میں کورونا کے 1000 سے زائد کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ غیر قانونی تارکین وطن سمندر کے پرسکون ہونے کا فائدہ اٹھانے لگے، بچوں اور حاملہ خواتین سمیت سینکڑوں افراد سمندری راستے سے برطانیہ داخل ہونے کی کوشش میں پکڑے گئے۔ حکومت کا غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف مزید سخت اقدامات کا فیصلہ۔ گریٹر مانچسٹر میں تعینات ہونے والے نئے پاکستانی قونصل جنرل طارق وزیر کی 92 نیوز کے ساتھ خصوصی نشست، کہتے ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی کے وکیل بن کر پاکستانی بھائیوں کی خدمت کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر کھل کر اظہار خیال کیا۔ اسپین میں پاکستان تحریک انصاف کے چوتھے انٹرا پارٹی انتخابات، منتخب ممبران نے حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق پارٹی کو منظم اور مستحکم بنائیں گے۔ نو منتخب عہدیداروں کی میڈیا ٹاک۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی بھارت کے خلاف بھرپور مہم، مقبوضہ وادی میں بھارت کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات اور مظالم کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ بھارت پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی مانیٹرنگ ٹیم نے اپنی رپورٹ میں تصدیق کر دی۔ جرمنی میں پاکستانی کمیونٹی کی سماجی سرگرمیاں بحال ہونے لگی۔ فرینکفرٹ میں عید ملن پارٹی اور شام غزل کا اہتمام، استاد شبیر گلو نے فارسی اردو کلام پیش کیا۔ صوفیانہ کلام سن کر شرکائے محفل جھوم اٹھے۔ پودے لگائیں، ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں، آلودگی کو بھگائیں۔ آپ بھی شجرکاری مہم کا حصہ بنیں۔ اپنی تصویر یا فوٹیج 92 نیوز کو واٹس ایپ کریں اور دنیا کو دکھائیں۔ حکومت نے بھی ٹائیگر فورس ایپ میں جیو ٹیگنگ کی سہولت اور گرین سیلفی فیچر متعارف کرا دیا۔ اور جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں، کہیں قومی پرچم لہرانے لگے اور کہیں جھنڈیاں۔ آرائشی اشیاء کے سٹال سے سج گئے بازار، کوئی بیجز اور کوئی سبز ملبوسات کا طلبگار۔ کشمیر کے پرچم اور بیجز کی خریداری میں بھی شہریوں کی دلچسپیاں دیدنی۔ بسم اللہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं राफिया अवान। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। जी हाँ, सुबह तमाम दुकानें और बाजार खुले, शाम को होटल्स पर आवाम के डेरे रहे। पंजाब में आवाम को मेट्रो का इंतजार है, जबकि सिनेमा मालकान में तजब्जुब भी देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट वसीम अख्तर पर बरहम है, जबकि मरियम नवाज कल नैब में पेश हों। आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद होगी। इन सब पर बात करेंगे तफसील के साथ इसी बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालिकी ने मुलाकात की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा फैसल रजा से। फैसल रजा, कहिएगा मुलाकात कितनी देर जारी रही और कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर बहस रहे? जी बिल्कुल, ISPR ने जो अब से कुछ देर कबल ताज़ा तरीन इत्तला जारी की है, उनके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी सफीर की अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है, जबकि मुलाकात में बाहमी दिफाई ताउन पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई है। जी सही, फैसल रजा साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुल्की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ISI की कारकर्दगी में बेहतरी के इक़दामात को सराहा है। बात करेंगे, फैसल रजा ही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, कहिएगा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का ये दौरा कैसा रहा? जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज ISI हेडक्वार्टर्स का अहम दौरा किया। आर्मी चीफ को जो है वो ISI हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। आर्मी चीफ को मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती की जो सूरत हाल है उस पर तफसीली ब्रीफिंग की गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने ISI की कारकर्दगी में बेहतरी के इक़दाम को जो है वो सराहा और इसी के साथ साथ आर्मी चीफ ने दरपेश खतरात से निपटने के लिए इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की हिकमत अमली की भी तारीफ की। जी ठीक है, फैसल रजा आप हमारे साथ हैं और बता रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है और कारकर्दगी के बारे गुफ्तगू की है और सराहा है। तो नाज़रीन, मईशत का पहिया चल पड़ा। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबारी मराकज़, होटल और रेस्टोरेंट्स खुल गए। ब्यूटी पार्लर्स, जिम, खेलों के मैदान भी आबाद हो गए। मज़ारात पर हाजिरी की मशरूत इजाज़त भी मिल गई। मुल्क भर में निज़ाम ज़िंदगी बहाल, मईशत का पहिया चल पड़ा। एक दो शोबों के सिवा तमाम शोबे खुल गए। तमाम कारोबारी मराकज़, होटल और रेस्टोरेंट्स खुल गए। ब्यूटी पार्लर्स, जिम और खेल के मैदान भी आबाद हो गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया भी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। ताहम गाड़ियों में खड़े होकर सफर करने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन को मज़ारात पर हाजिरी की मशरूत इजाज़त मिल गई। SOPs पर अमल दरामद करना लाजमी होगा। मार्केटों में शाम 7 बजे कारोबार बंद करने पर पाबंदी भी खत्म कर दी गई, जिस पर ताजर खुश हैं। हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया है, हम इसके तायद करते हैं। हमने हुकूमत के साथ भी तावन किया है, सब ताजरान ने, आइंदा भी करेंगे। ये सारे दुकानदार खुशी से मुतालिक कि मतलब दुकानें हो खुल गई और रोज़गार बहाल हो गए। हम अपने पुरानी रूटीन के मुताबिक अपना कारोबार कर रहे हैं, तो हमें अब खुशी है। बहुत अच्छा हुआ है कि कारोबार खुल गया है। हर बंदे का गाहक को भी मुतमईन होगा कि हम आएंगे तो दुकान खुली होगी। लाहौर का चिड़ियाघर कल से शायकीन के लिए खोल दिया जाएगा। चिड़ियाघर के औकात कार सुबह 9 से गरूब आफ्ताब तक होंगे। चिड़ियाघर की सैर के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा। मुल्क भर में तफरीही मकामात की रौनकें भी बहाल हैं, जिसके बाद सियाहती मकामात पर शहरियों का रश लग गया। तालीमी इदारे और शादी हॉल्स 15 सितम्बर तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारों को दोबारा काम की इजाज़त देने से कबल 7 सितंबर को इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची की सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेयर कराची शहर की जान छोड़ दें, हर कोई शहर को तबाह कर रहा है। वजीर गाड़ी में घूमते हैं, वजीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, घूमकर वापस आ जाते हैं। अदालत ने शहर से बिलबोर्ड्स हटाने का भी हुक्म जारी कर दिया। जाओ जान छोड़ दो शहर की, इख्तियारात नहीं है तो घर क्यों नहीं चले जाते।
कराची की हालत ज़ार पर चीफ जस्टिस बरहम। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, मेयर कराची कहते हैं इनके पास इख्तियारात नहीं, अगर इख्तियारात नहीं तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो। चीफ जस्टिस ने मेयर कराची से इस्तफसार किया कि आप कब जाएंगे। इस पर वसीम अख्तर ने कहा 28 अगस्त को मुद्दत खत्म होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जाओ जान छोड़ो शहर की। अदालत ने कहा कराची से हर कोई अपने हिस्से की बाल्टी भरकर चला जाता है। सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। वजीर बड़ी गाड़ियों में मुस्कुराते हुए घूमते हैं। वज़ीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर दौरा करते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान बिलबोर्ड कराची के शहरियों पर गिरने पर बरहमी का इजहार किया और हुक्म दिया शहर से हर किस्म के बिलबोर्ड फौरी उतार दिए जाएं और रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। चीफ जस्टिस ने पूछा, लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? शहर में सफाई का जिम्मेदार कौन है? कोई है जो इस शहर को साफ करे? बच्चे गटर के पानी में रोज डूबते हैं। इनकी गाड़ी का पहिया भी गटर में गिर गया था। लगता है सिंध और शहरी हुकूमत की इस शहर से दुश्मनी है। यही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक पर भी बरहम हुए। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक ने अरबों खरबों के हिसाब से माल कमा लिया, उनके डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया जाए। कराची के मसाइल पर समाअत के दौरान के इलेक्ट्रिक की शामत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि के इलेक्ट्रिक वाले भी यहाँ मजे कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बिजली वालों ने अपना सारा बाहर का कर्जा कराची से निकाला। के इलेक्ट्रिक ने अरबों खरबों के हिसाब से कमा लिया। एक छोटा सा आदमी कराची की बिजली बंद कर देता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, रोज 8-10 लोग करंट लगने से मर जाते हैं। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। और आखिरकार मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने नैब में पेश होने का फैसला कर ही लिया। काफले की सूरत में जाती उम्रा से नैब ऑफिस पहुंचेंगी। लाहौर से मियां शाहिद नदीम रिपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने नैब में पेश होने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक मरियम नवाज मंगल को काफले की सूरत में जाती उम्रा से नैब ऑफिस पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर ने कारकुनों को 9:30 बजे का वक्त दे दिया। 200 एकड़ जमीन की गैर कानूनी मुंतकली के केस में नैब की जानिब से मरियम नवाज को 11 अगस्त को तलबी का नोटिस जाती उम्रा भिजवाया गया था। मरियम नवाज को सवालनामा भी भेजा गया और रिकॉर्ड समेत पेश होने की हदायत की गई। जराये के मुताबिक 2014 में जाती उम्रा में 500 एकड़ जमीन शरीफ खानदान के नाम मुंतकिल की गई, जिनमें से 200 एकड़ मरियम नवाज, 100 एकड़ नवाज शरीफ और 100 एकड़ शहबाज शरीफ के नाम पर मुंतकिल की गई। जराये के मुताबिक जाती उम्रा के अतराफ की जमीन को ग्रीन लैंड भी करार दे दिया गया ताकि वहाँ कोई आम शहरी जमीन न खरीद सके। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मालदीव के सदर से टेलीफोन पर राबता किया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मालदीव के इक़दामात को सराहा और बताया स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली बहुत कामयाब रही। वज़ीर आज़म ने मालदीव के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। बुलेटिन में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानिया में ज़िंदगी के मामूलात बहाल होने लगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने सितंबर में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं तलबा और असातिज़ा स्कूल जाने के लिए तैयारी पकड़ लें। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अवान। सितंबर में बरतानिया भर के तालीमी इदारे खुल जाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमत बरतानिया की ये इखलाकी जिम्मेदारी है कि सितंबर तक तमाम स्कूल खोल दिए जाएं। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यह बात मशरकी लंदन के एक स्कूल के दौरे के मौके पर कही। उनके दौरे का मकसद स्कूल में कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इक़दामात का जायजा लेना था। I just think over the last few months, teachers overall have done an incredible job looking after pupils during the crisis, but also getting ready for a full return to school in September. That's the crucial thing that we all want to see. It's not right that kids should spend more time out of school. It's much better for their health, their mental well-being, obviously their educational prospects if everybody comes back to school
full-time in September. It's our moral duty as a country to make sure that happens. बोरिस जॉनसन का कहना था कि वो चाहते हैं तलबा के इम्तिहानात मामूल के मुताबिक हों। कोरोना वायरस की वजह से ये तालीमी साल इंतहाई मुतासर हुआ है। Well, I'm very, very keen that exams should go ahead as normal. I think exams are a vital part of our education, and I thank all the teachers for all the preparations that they're making. Now, clearly, because of what's happened this year, there's some anxiety about what grades pupils are going to get, and everybody understands the system that the teachers are setting the grades. Then there's a standardization system, and we'll do our best to ensure that the hard work of pupils is properly reflected. बरतानवी शहरियों की छुट्टियों के सैर सपाटे के हवाले से भी बोरिस जॉनसन ने गुफ्तगू की। उनका कहना था कि वो लोगों के इनफरादी फैसलों या छुट्टियां गुजारने के हवाले से उन्हें किसी किस्म की नसीहत नहीं करना चाहते, ताहम वो फ्रांस को करंटीना की फहरिस्त में शामिल नहीं करेंगे। Well, I don't want to advise people about their individual holidays, individual decisions. They should look at the travel advice from the Foreign Office clearly. But what I will say, and I hope people would expect us to do this, in the context of a global pandemic, we've got to keep looking at the data in all the countries to which British people want to travel, and where it is necessary to impose restrictions or to impose a quarantine system, we will not hesitate to do so. बरतानवी सियासत, फौज, सफारतकारी और दीगर अमूर पर भी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने खुलकर इजहार ख्याल किया। The United Kingdom, the Union of the United Kingdom, is for me it's the greatest political partnership the world has ever seen. And I think what people in this country often don't appreciate is the way in which the UK is seen abroad, and they don't see us as England or Wales or Scotland or Northern Ireland. What they see is great British institutions. They see amazing British armed services, amazing British diplomacy, overseas aid, British science and technology, British arts. That's the thing that is admired and loved around the world. It would be such a shame to lose the power, the magic of that union. We are much stronger and better together than broken up. बरतानवी वज़ीर आज़म को स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराया गया। उन्होंने क्लास रूम्स भी देखे और कोरोना से बचाव के इंतजामात का जायजा भी लिया। बाद में स्कूल के दौरे के दौरान बोरिस जॉनसन ने तलबा के साथ मिलकर मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। उन्होंने निशानेबाजी की मशक भी की। तलबा वज़ीर आज़म को अपने दरमियान देखकर बेहद खुश दिखाई दिए। गुलाम हुसैन अनवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। बरतानिया के साबिक चीफ साइंटिस्ट डेविड किंग ने कहा है कि बरतानिया में बढ़ते हुए केसेस की वजह से अगले माह दोबारा लॉकडाउन का खतरा मंडला रहा है। बढ़ते हुए केसेस में स्कूल्स खोलना खतरनाक होगा। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के साबिक चीफ साइंटिस्ट डेविड किंग के हवाले से बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि बरतानिया में बढ़ते हुए केसेस की वजह से अगले माह दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। वेल्स और इंग्लैंड में बढ़ते हुए केसेस में स्कूल खोलना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी कोरोना वायरस के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस से निपटना अहम है और अगर जरूरत पड़ी तो किसी सूरत भी करंटीना की पाबंदी लगाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। आज भी बरतानिया में 1000 से जायद नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत तमाम सूरत हाल का करीब से जायजा ले रही है और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम भी ज़रूरी हुआ किया जाएगा। गुलाम हुसैन अनवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। गैर कानूनी तारकीन वतन समंदर के पुरसकून होने का फ़ायदा उठाने लगे। बच्चों और हमला खातीन समेत सैकड़ों अफराद समुद्री रास्ते से बरतानिया दाखिल होने की कोशिश में पकड़े गए। बरतानवी हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मजीद सख्त इक़दामात उठाने का ऐलान कर दिया है। मजीद तफसीलात के लिए ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। बच्चों और हामला खवातीन समेत सैकड़ों गैर कानूनी तारकीन वतन फ्रांस के समुद्री रास्ते में बरतानिया दाखिल होने की कोशिश में पकड़े गए। बॉर्डर फोर्सेज की कश्तियों ने तमाम अफराद को डोवर हार्बर पर मुंतकिल कर दिया। छोटी और गैर महफूज कश्तियों पर सवार ये महाजरीन एक ऐसे वक्त में पकड़े गए जब बरतानवी हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम उठाने का ऐलान कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक समंदर की हालत पुरसुकून है और तारकीन वतन इसी चीज का फायदा उठाते हुए बरतानिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल ने कहा है कि बरतानिया इस मामले से निपटने के लिए नए खसूसी इकदाम कर रहा है।
हुकूमत ने बरतानवी मसल्ह अफवाज से कहा है कि वो महाजरीन की कश्तियों से निपटने में हुकूमत की मामनत करें। दूसरी जानब बरतानिया और फ्रांस इस अहम मामले पर रवां हफ्ते मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं, जिसमें अहम पेशरफ्त की तवक्को की जा रही है। गुलाम सनवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। मैनचेस्टर में हाल ही में तैनात होने वाले पाकिस्तानी कौंसलर जनरल तारिक वजीर कहते हैं वो कम्युनिटी के वकील बनकर उनकी भरपूर खिदमत करेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और उनके हल पर तफसीली गुफ्तगू की। आइए देखते। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौंसलेट जनरल मैनचेस्टर में और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वज़ीर साहब, जिनका हाल ही में यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है, जिन्होंने हाल ही में यहाँ चार्ज संभाला है एज ए कौंसलेट जनरल मैनचेस्टर। और सबसे पहले तो हम इनको खुश आमदीद कहेंगे, इसके बाद इनसे पूछते हैं कि अब तक कैसा पाया इन्होंने मैनचेस्टर में इन्होंने चार्ज संभालने के बाद, और आगे मैनचेस्टर, ग्रेटर मैनचेस्टर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये क्या कुछ करना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। पब्लिक कम्युनिटी ये जानना चाह रही है कि एक कौंसलेट जनरल जो होता है उसकी बेसिकली क्या ज़िम्मेदारियां होती हैं अपनी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके लिए। देखें जी, बेसिकली तो ये है कि कौंसलेट जनरल जो है ये मातहत है हमारे हाई कमीशन के। हम झेली मिशन हैं अपने हाई कमीशन लंदन के। तो कौंसल जनरल जो है वो नुमाइंदा है इस ग्रेटर मैनचेस्टर या जो नॉर्थ वेस्ट आप जिसको कहते हैं इंग्लैंड, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटिंग द हाई कमिश्नर एज वेल एट द सेम टाइम। तो मेरी जो या कौंसल जनरल की जो ज़िम्मेदारी बेसिक ये है कि ओवरसी करे जो भी कम्युनिटी की इश्यूज़ हैं, कम्युनिटी के मसाइल हैं, उनको जहाँ उसकी अपनी इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो खुद करे। क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं ऐसी हंगामी हालात में कौंसलेट जनरल की? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही एक एबनॉर्मल सिचुएशन रही है, आपको खुद इस बात का अंदाज़ा है। मैं आई एम कमिंग फ्रॉम कैनबरा में मैं था डिप्टी हाई कमिश्नर, तो वहाँ मैं फोकल पर्सन था इसी कोविड-19 के लिए, और वी डिडंट हैव एनी, हमारे पास इसके कोई प्रेसिडेंट नहीं था कि कैसे काम किया जाए इसमें। लेकिन हमारे लोगों ने, कम्युनिटी ने, हम सब ने मिलकर ये सारे मसाइल का सामना किया। यहाँ जो चीज़ें हैं, जो मसाइल हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, और मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर कोई हमसे यहाँ कोई ऐसी लोगों ने महसूस किया तो मैं ज़ाती तौर पे इसके लिए माज़रत चाहता हूँ लोगों से, और ये लोगों को अश्योर करता हूँ कि जो हमारे मैंडेट हैं के अंदर जो चीज़ें हैं हम वो करेंगे, और हम इसमें खुशी भी महसूस करेंगे, और इंशाल्लाह आगे आप चीज़ों को ज़रा बेहतर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन जब होती है, बाज़ दफ़ा मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में सैलाब आते हैं, पाकिस्तान में और चीज़ें होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो उनमें फिर हमारे पास एक सेट हमारे वो है SOPs हैं जिन पर हम अमल करते हैं। यहाँ भी अब कौंसलेट क्या है, कौंसलेट बेसिकली लोगों का घर है। यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ ये नहीं है रात को आप आना चाहें आ सकते हैं, तो दिस इज़ बेसिकली योर होम। तो आपके जो घर में जो आपको जो चीज़ें मैसर होती हैं तो यहाँ भी मैसर होती हैं, और इंशाल्लाह होंगी आपके सामने। इसके अलावा सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान जाते हैं उनकी जायदादों पर कब्ज़े हुए होते हैं, तो बहुत सारे मसाइल से उनको गुज़रना पड़ता है। इस सिलसिले में उनकी क्या हेल्प कर सकता है पाकिस्तान? जो कौंसलेट जनरल है मैनचेस्टर की हम बात करें, वो किस किस्म की उनकी मदद कर सकता है? उसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस इशू के ऊपर बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, और फॉरेन ऑफिस भी उसमें शामिल है, मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी शामिल है उसमें आपके ओम्बड्समैन है डिफरेंट कैटेगरीज़ के, वो भी उसमें शामिल है, और आपके जो इंतज़ामी वहाँ पे सिस्टम है वो भी इसमें शामिल है, और सारे स्टेक होल्डर्स इसमें कोशिश करते हैं और सब बैठते हैं मुख्तलिफ़ केसेस के ऊपर। और मैं ख़ुद बैठा हूँ ऐसी मीटिंग्स में जिसमें हमने केसेस डिस्कस किए हैं और कोशिश की कि उनका अजाला किया जाए लोगों के मसाइल का। और यहाँ पे जो हमारा सिलसिला सर्जरीज़ का, कल भी हम गए थे रॉशडेल, वहाँ पे हमने लोगों से भी बात की, तो इन अ वे वो खुली कचहरी भी बन गई, उसमें लोगों ने हमें बहुत सी बातें बताई भी, और हमारी निशानदेही भी कराई बहुत सी चीज़ों की हमें, और हम करेंगे आपकी। बल्कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों के बीच में जाके जब आप उनसे सुनते हैं, उनके कंफर्ट जोन में जाके जब आप उनसे सुनते हैं, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बात होती है। और उनको जब आप बताते हैं कि जी हम आपके लिए हैं और आपके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो लोग फिर ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस तरह ये और इस तरह के और बहुत सी तजावीज़ हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें इंशाल्लाह ये भी एक तजवीज़ होगी। बहुत शुक्रिया सर। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि CG साहब ने कहा कि मैं इंशाल्लाह अपने
اپنی اوورسیز کمیونٹی کا وکیل بن کر ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کروں گا. جی بلٹن میں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. اسپین میں پاکستان تحریک انصاف کے چوتھے انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد منتخب ممبران نے حلف اٹھا لیا. نامنتخب عہدیداران نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ عمران خان کے ویژن کے مطابق پارٹی کو منظم اور مستحکم بنائیں گے. شاہد احمد شاہد کی رپورٹ. تبدیلی کے دعوے دار اور عمران خان کے چاہنے والے وطن عزیز کی طرح 7 سمندر پار بھی پاکستان تحریک انصاف کا دم بھرتے ہیں. وہ اپنے دیش سے کوسوں دور بیٹھ کر بھی پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں. اپنے خون پسینے کی کمائی نہ صرف اپنے قائد اور اپنی پارٹی پر قربان کرتے ہیں بلکہ وطن عزیز کو پھلتا پھولتا اور ترقی کرتا دیکھ کر پھولے نہیں سماتے. ان کے وطن عزیز اور اپنے قائد سے محبت کے والہانہ جذبے بڑے بے مثال ہیں. پارٹی کو مزید طاقتور اور مستحکم بنانے کی غرض سے اسپین میں چوتھے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد حلف برداری کی تقریب ایک بڑے جلسے میں بدل گئی جس میں PTI کے سابقہ اور موجودہ عہدیداران، پارٹی ورکرز اور خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی. اسپین میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے خطرات بھی پارٹی ورکر کے جذبوں کو کم نہ کر سکے. تقریب میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے علاوہ سماجی اور کاروباری شخصیات بھی بڑی تعداد میں موجود تھیں. سابق صدر شہباز احمد اور نو منتخب صدر شہزاد اصغر بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے PTI اور عمران خان کے ویژن کے مطابق اسپین بھر میں پارٹی کو منظم اور مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ بہت جلد کرپشن سے پاک پاکستان عمران خان کی قیادت میں ترقی کی نئی منازل طے کرے گا. آج ہمارا چوتھا انٹرا پارٹی الیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آج اس کی حلف کی تقریبات تھی اور آج مجھے یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ PTI کے چاہنے والے ایک بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں اور میں اپنی جو نئی ٹیم ہے جو میرے ساتھ نئی قیادت آئی ہے میں ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ پہلے کی طرح اپنی پارٹی کو اسپین بھر میں مضبوط بھی کریں گے اور خان صاحب کے ویژن اور جو خان صاحب کا مقصد ہے پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے، اس کو فالو بھی کریں گے. ابھی حلف برداری کی تقریب مکمل ہو چکی ہے. میں شکر گزار ہوں سب دوستوں کا جنہوں نے تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور میں امید کرتا ہوں جو بھی نئے دوست میرے اس ٹیم میں شامل ہوئے ہیں ان کو کہ وہ اپنا ذمہ داری جو ان کو ملی ہے وہ آسان طریقے سے عمران خان کے ویژن کے مطابق اس کو حل کریں اور جو بھی ذمہ داری ملی ہے اس کو سچے اور ایمانداری طریقے سے نبھائیں. پاکستان تحریک انصاف اسپین کے انٹرا پارٹی الیکشن مکمل ہونے پر آج کی یہ تقریب منعقد کی گئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں اپنے تمام نیو عہدیداران سے کہ وہ ایمانداری اور ذمہ داری سے پارٹی کے قواعد و ضابط میں رہتے ہوئے عمران خان کے منشور کے مطابق اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے. تقریب میں 9 منتخب عہدیداران کو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے. 9 منتخب صدر شہزاد اصغر بھٹی، سینئر نائب صدر نوید افضال اور جنرل سیکریٹری قاسم علی سمیت دیگر عہدیداروں نے پارٹی سے وفاداری کا حلف اٹھایا جبکہ آخر میں مہمانوں کے لیے ڈنر کا اہتمام تھا. چوتھے انٹرا پارٹی الیکشن اور حلف برداری کی تقریب کے بعد PTI کے ورکرز اور عہدیداران کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے. کیمرامین بابر چودھری کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین. شکاگو میں تعینات پاکستانی قونصل جنرل جاوید احمد عمرانی نے امریکی جریدے میں لکھے گئے اپنے مضمون میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جاری ریاستی مظالم کا پردہ چاک کر دیا. انہوں نے لکھا، بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حق خود ارادیت اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادیں جن میں انہیں استصواب رائے کا حق دیا گیا ہے کہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. انہوں نے لکھا کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. کرونا وائرس کے باعث ملتوی ہونے والا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا باکسنگ میلہ پھر سجنے کو تیار ہے. عالمی شہرت یافتہ برطانوی باکسر عامر خان اور عثمان وزیر پاکستان کا پہلا انٹرنیشنل باکسنگ شو کا اسلام آباد میں انعقاد کی نئی تاریخ کا اعلان کریں گے. عامر خان اس بڑے ایونٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. Everybody, just want to request you all to be at the Amir Khan Boxing Academy tomorrow, 1:30 p.m.
We are making a big announcement tomorrow at the boxing hall, and there's going to be other media people there as well. So I invite everybody to attend. I think it's going to be great news for Pakistan. So please come 1:30 at the Amir Khan Boxing Hall, Islamabad. बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।